गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 12th लेसन अंडरस्टैंडिंग द मैप। तो मैप का मतलब क्या? नक्शा, है ना। मैप यानी हम किसी जगह के बारे में जब हम जानते हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम किसी जगह की विज़िट करते हैं तो हमें पता पड़ रहा होता है कि ये जो जगह है उसके वो किन किन चीज़ों से सराउंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग द मैप, मैप के बारे में समझना। टूरिस्ट विजिट डिफरेंट टूरिस्ट destinations of Gujarat like Somnath, Dwarka, Tarnetra, Ambaji, Dorodo, Satpura, etc. In spite of being unknown with the geographical area of tourist destinations, they can reach the destination very easily. What is the reason of it? The reason is only that they have the map showing tourist destinations. They can receive information of tourist spots destination by reading different maps. देखो कोई भी टूरिस्ट जब आते हैं हमारे यहाँ पे घूमने के लिए तो वो कोई भी डेस्टिनेशन पे इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? जोग्राफिकल एरिया होता है, जोग्राफिकल मैप होता है। उससे क्या होता है? उनको पता होता है कि हाँ भाई ये चीज़ इसके पास है। जैसे कि हम लोग जब जू घूमने जाते हैं, है ना, तो जू में क्या होता है? इस केज के बाद ये केज है, इस केज के बाद ये केज है, तो हमें पता होता है ना कि हाँ भाई इसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, राइट। तो उसी तरीके से जब हम किसी जगह पर डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? अलग अलग तरह के जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट्स बने होते हैं। तो हमें पता होता है कि इस जगह के बाद में ये पॉइंट आएगा। जैसे कि अगर अब तो जो है व्हीकल्स आ रहे हैं उसके अंदर भी मैप होता है, तो हमें जो है पता पड़ रहा होता है। मोबाइल में मैप होता है, राइट। In the present time, map have proved very useful for many other objectives beside tours. Today, in the age of science and technology, you can reach any place in the world with the help of GPS, Global Position System. Let us understand the map in this chapter. Global of the earth is very important to study the earth, but map is more important to study any one continent's country, state, district, taluka, city or any village of the earth. The word map is also called naksha in Hindi, जो मैंने अभी आपको बताया, right? Map word is derived from the Latin word mappa mundi. The meaning of it is the piece of cloth that can be held in the hand. In the general sense, drawing of the earth's surface of any one of the part on the plain flat paper is known as a map. Many detail of any large area can be included in the map. हम कोई भी चीज़ को जो है अगर हमें शो करना है, जैसे कि सपोज करो कि अगर किसी को हमें अपना घर भी बताना है तो हम क्या करते हैं? एक प्लेन पेपर लेते हैं और उस पर हम बताते हैं कि भाई देखो तुम ऐसे सीधे चलोगे, फिर लेफ्ट मुड़ोगे, फिर राइट मुड़ोगे, है ना। तो हम क्या बता रहे होते? उसको नक्शा बता रहे होते। तो इसको कहते हैं ड्रॉ करके बताना। तो एटलस क्या कर रहे होते हैं? हम सिंपली ड्राइंग कर रहे होते हैं। एटलस मैप. An atlas is a collection of maps showing various details of the earth or its larger part. Atlas किसको बोलते हैं? जहाँ पर बहुत सारे नक्शे एक साथ इकट्ठे किए होते हैं। It contains political, administrative, natural and cultural details. Complete details of any concerned region can be known by map. Map shows important details of various regions like physical detail, mountain, plateau, plains, rivers, like lake, etc. And culture, transportation, industries, farming, irrigation. 2. Type of maps. There are two types of maps: thematic map and scale-based map. Thematic map. Such type of maps are prepared according to the required of necessary detail. Thematic map are categorized into two main sections based on the natural and cultural detail depicted in them. Natural maps, cultural maps. Scale-based map, the show physical details, is called scale-based. Scale-based map display showcases natural landforms like mountain, plateau, plains, rivers, ocean, etc. Map showing the detail of wild animals, vegetation, forest, minerals, etc. are part of the scale-based map. देखो scale-based map में क्या होता है कि हम जो है ये माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, इन सबको हम दिखाते हैं। टोपोग्राफिक मैप लैंडस्केप, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वाटरवेज एक्सेट्रा हम दिखा सकते हैं। क्लाइमेट में हम क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल्स दिखाते हैं।
एस्ट्रोनॉमिकल में हम जो है सेलेस्टियल बॉडी लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट, गैलेक्सी, स्टार्स को दिखा सकते हैं। कल्चरल मैप में the map which outlines the main map details is called cultural map. This map outlines various human activities. The map of state, farming, population, transportation are the example of cultural map. यानी कि हम इसके अंदर खेत का एरिया, पॉपुलेशन का एरिया, ट्रांसपोर्टेशन का एरिया, ये सब बता सकते हैं। पॉलिटिकल मैप, इसमें हम क्या बताते हैं, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, फ्रंटियर एरिया, ये सब बताते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री सेक्टरीज, फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब बताते हैं। हिस्टोरिकल मैप में हम नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को हम बताते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। Generally, if the scale of map is less than 1 centimeter 50 kilometer, then the map is called large scale map. In this map, 1 centimeter is equal to 50 kilometers. That is real distance on the earth. Large scale map shows more details. District, city or village map are the examples of large scale map. Small scale map shows large area of the earth's surface. Example, map of different continents are called a small scale map. World map, country map, maps of atlas are the example of a small scale map. There are 4 types of scale map. Underline कर लेना, atlas, cadastral, top of sheets, site map, wall map. ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैप बता रखे जो हमने देखा है। अब आपको लेना है, एक गुजरात का मैप लेंगे और इसमें जो जो बता रखे वो आप फिल करेंगे। एक आप इंडिया का मैप लेंगे और ये करेंगे। ये आपका एक्टिविटी है और आपको ये मैप लेना है और अपनी CW की नोटबुक में इसको पेस्ट करना है लिख करके, और ये भी आपको पेस्ट करना है, दोनों मैप, ठीक है। और वर्ल्ड का मैप ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है आपकी CW की नोटबुक में। अब यहाँ पे देख लीजिए, थिंग्स टू नो, देयर आर द 3 मेन मैपिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया: नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और सर्वे ऑफ इंडिया। द ऑर्गेनाइजेशन इज इन देहरादून। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, अब देखो यहाँ पर जो है ये मैप का एरिया दे रखा है जिसमें हम इस तरीके से मैप को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 4 मेन डायरेक्शन आर शोन इन दिस फिगर। इसमें 4 दे रखा है, 4 तरीके हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये है कंपास। बहुत पुराने टाइम पे इस कंपास से हम जो है कि डायरेक्शंस को देख सकते थे। कंपास इज अ डिवाइस डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल ऑन द एक्सिस दैट कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंपास बॉक्स विच इज कवर्ड बाय अ ग्लास। N and S are marked on the needle. Compass is used in the ship, steamer, submarines or aircraft etc. and determine the direction. ठीक है, डायरेक्शन बताए जाते हैं। स्केल, रेशियो and distance between any 2 places on the earth and distance between those 2 locations on the map is called scale. Scale is a 1 centimeter is equal to 100 kilometer, means 1 centimeter shown in the map is actual 100 kilometer distance on the earth. Distance can be found easily thread or scale. Scale से हम इसको देख सकते हैं। अनकन्वेंशनल साइन में आप देख सकते हैं वेरियस physical and cultural distance are shown in map with the help of some signs. जैसे कि कुछ साइन दिए हुए हैं, उससे हम इनको कन्वेंशनल साइंस को हम मैप इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर कि ये इस तरह के साइन दिए हुए रहते हैं। देखो, फॉरेस्ट के लिए अलग है, लाइट शोज़ के लिए अलग है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम साइन, डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड क्लोरोप्लेथ। फिजिकल एंड कल्चर डिटेल गिवन द टेबल आर शोन। देखो, ये लैंड फॉर्म के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए, वेजिटेशन रीजन के लिए, इनके लिए भी अलग अलग दे रखा है। लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ अ वास्ट लैंड पार्ट। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि अलग अलग जो है ये इसमें दे रखा है। ये आप पूरा का पूरा मैप लोगे और इसको इस तरीके से पूरा फिल करके और पेस्ट करोगे, ठीक है। इसको ये वाला जो है पैराग्राफ, इसको रीड करोगे। देखो, इंडिया इज़ अ वास्ट लैंड पार्ट। इंडिया lies in the northeast hemisphere of the earth. India lies in the south of the continent of Asia. Himalayan mountain range is situated in the north of India. Bay of Bengal is situated
situated in the eastern direction and Arabian Sea is situated in the western direction. The area of mainland of India lies between 8 degree 4 and 37 degree 4.6 north latitude and 68 degree 0.7 to 97 degree 0.7 east longitude. Tropic of Cancer passes almost through the center part of India. ये इसमें at present India is divided into 28 states, 7 union territories and 1 national capital region for the sake of easy administration. ये जो है 29 ऑफ बिगनिंग ईयर की थी, इसको अंडरलाइन कर लेना। और ये जो फिर से बोल रही हूँ, ये जो मैप दे रखा है पॉलिटिकल यूनियन वाला, इसको फिल कर लेना। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो फील फ्री आस्क मी नाउ। बाय।